Who is She-Hulk? What is She-Hulk? Why is She-Hulk? Let's talk. Warning, spoilers ahead. तो भाई और बहनों, मैं हूँ आर्टमैन, आप सबका वापस स्वागत है कमेंट पे। आज हमारे साथ है एक स्पेशल न्यू कमर, कथा साध्वी। तो हम आज बात करने वाले हैं शी हल्क इस सीरीज के बारे में। तो पहले तो शी हल्क इज MCU सीरीज जो अभी डिज्नी प्लस पे आ रही है, बेस्ड ऑन द कॉमिक बुक सीरीज ऑफ द सेम नेम। इस सीरीज की प्रोटैगनिस्ट है जेनिफर वॉल्टर्स, जो एक लॉयर है जिसे उसकी हल्किंग एबिलिटी उसके भाई ब्रूस बैनर से मिलती है। अब उसके बारे में बेसिक समझ चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट्स अबाउट द शो, स्पेसिफिकली 1 द स्टोरी, 2 द VFX एंड 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वोकनेस। तो पहले बात करते हैं स्टोरी की। इन द कॉमिक्स उसे अपनी शक्तियाँ थोड़ी डिफरेंटली मिलती है एज अपोज टू द सीरीज। कॉमिक्स में बेसिकली वॉल्टर्स एक बार एक बंदे को डिफेंड करती रहती है इन कोर्ट, एंड अपेरेंटली उसके पास निकोलस ट्रैस्क नाम के एक लोकल क्राइम बॉस के अगेंस्ट कुछ एविडेंस होता है। अनफॉर्चुनेटली उसके गुंडे लोग वॉल्टर्स को कॉर्नर करके उसे गोली मार देते हैं। बाय एब्सोल्यूट लक उसका भाई ब्रूस उसी शहर में होता है एट दैट टाइम, एंड ही रशेस हर टू द हॉस्पिटल। जेनिफर का बहुत ब्लड लॉस हुआ होता है, सो ब्रूस परफॉर्म्स एन इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब क्योंकि ये दोनों सेम ब्लड टाइप और सिमिलर जीन्स के हैं, तो जेनिफर में म्यूटेशन हो जाता है, लीडिंग टू हर बिकमिंग अ बिग ग्रीन वुमन। दिस इज हाउ शी बिकम्स द शी हल्क इन द कॉमिक्स. The show handles it very differently. It shows them swerve off a road due to a Sakaran spaceship in which Bruce and Jennifer get hurt badly. फिर जेनिफर स्ट्रगल करके ब्रूस को बाहर निकालती है, लेकिन ब्रूस का थोड़ा ब्लड जेनिफर के वुंड पे गिर जाता है. Herein lies the first issue. The comic origin was so much better because of the stakes. In the first and only MCU Hulk movie, it is made extremely clear कि ब्रूस का ब्लड खतरनाक होता है. The fact that he uses this blood for the transfusion shows कि इस situation में stakes कितने high थे, as well as how much he cares for Jennifer. And for Jennifer's character, she's there to defend a client. She's getting caught up in all this क्योंकि ये इसका job है. It shows how much she cares for her clients, even if she's against criminals like Trask, as well as her professionalism. But the show just breezes through this, thereby reducing the weight of her origin story for the sake of a short origin. Definitely a bad start. However, the tone of the show is very light and breezy, making use of her fourth wall breaking abilities. Yeah, she can do that. And I'm not gonna lie, it is kind of fun. They also have a weird pacing issue. Some scenes deserve slower beats, जैसे कि वो scene जिसमें वो ब्रूस को बताती है why she can control her rage. Sure, it seems out of place, but not because it's undermining Bruce's Hulk. I mean, to be honest, thoda sa, the dude's signature dialogue is "That's my secret cap, I'm always angry." Not to mention uski condition is because of a government project gone wrong, and then he's hunted down by his own government, lives as a wanted man for many years, has absolutely nobody to trust, और ये सब होकर भी apparently उसकी जिंदगी की कहानी शी हल्क के सामने फीकी पड़ जाती है क्योंकि she battles with cat calling. हाँ, माना गलत है, cat calling is absolutely wrong, लेकिन you were never villainized and hunted down by your own people. गलत है, but it's not on the same scale. Trauma is not the same. It seems out of place क्योंकि it's an issue with pacing. A more thoughtful, thought-provoking way to express her thoughts on the matter would be something like this. Leading up to that scene, regularly but subtly, ये दिखाओ कि उसका as a woman exist करना कैसे struggling होता है, followed by her speech about why Jennifer का struggle ज़्यादा मायने रखता है. In my opinion, this particular flow in the story would have done marvels. Pun intended. But that doesn't happen in the show. And she just gets everything with no on-screen attempt to allow us to empathize with her. Barely थोड़ा support मिल जाता है और फिर अपनी हरी नारी अपने पैरों पे खड़ी. There is no reference to whether or not उसको athletic abilities है या नहीं. It's like blood के साथ skills भी add हुए हैं इसको. Like come on man, थोड़ा तो effort दिखाओ उसके side पे. A bit more time to work things out would have helped. लेकिन जब कोई डायरेक्टर ही कहती है कि उन्हें लॉ सीन्स लिखने नहीं आते, तो फिर बात ही खत्म हो गई. और हाँ, इस शो की प्रोटैगनिस्ट माइंड यू एक लॉयर है, एक
एक लॉयर जो अपना बहुत सारा टाइम कोर्ट्स में या फिर लॉयर गिरी में बिताएगी, तो कोर्ट सीन्स आर सो बैड इट्स पेनफुल टू वॉच। मार्वल फैंस बेटर कॉल सॉल नहीं देखते क्या? आई मीन डेयरडेविल तो एक मार्वल शो ही था। हाँ, अब वो इंडिपेंडेंटली बनाया था नेटफ्लिक्स ने, लेकिन वो राइटर्स नहीं ले सकते थे। एंड you know, they introduced Daredevil in the recent episode at the time of recording, and the fact of the matter is this show has let everybody down. It is a disservice to not just Daredevil as a character but She-Hulk as well as a character. Could the show have been a great courtroom drama? We'll never know. अब She-Hulk की और थोड़ी मारने के लिए कथा साध्वी का स्वागत कीजिए। Hello everyone, you are now listening to कथा साध्वी। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं एक लिटरेचर स्टूडेंट हूँ और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को स्टडी करना पसंद करती हूँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उससे इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, डिस्क्लेमर, मैंने शी-हल्क कॉमिक्स नहीं पढ़ी हैं तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ओरिजिन स्टोरी की बात करें तो मुझे काफ़ी फास्ट पेस्ड और वीकली एग्जीक्यूटेड लगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रेलर देख के ये लगा कि ये एक सुपर हीरो की स्टोरी है जो कि अपने जॉब को लेकर काफ़ी पैशनेट है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वी रियलाइज़ कि हमें इंटेलेक्चुअल लीड का लालच दे के इन्होंने इमोशनल एंगल थमा दिया है। नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट अ कैजुअल नरेशन, लेकिन इमोशनल एंगल इतना बोरिंग और अननेसेसरी है कि स्टोरी का मोटिव ही नहीं समझ आता है। चलो अब दो सब टॉपिक्स पे आते हैं। फर्स्टली, इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे डील किया गया है, एंड सेकेंडली, सुपर पावर्स का कोई सेंस बनता भी है या नहीं। जेनिफर वॉल्टर्स में इतना बड़ा और परमानेंट फिजिकल चेंज आता है, वो थोड़े टाइम के लिए पैनिक करती है और फिर सब ठीक हो जाता है, तो ऑडियंस इससे कनेक्ट ही नहीं कर पाती। ऑडियंस उसके स्ट्रगल से कनेक्ट नहीं कर पाती है। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर फीमेल बॉडीज़ हार्मोनल चेंजेस से गुजरती हैं, जो कि कोई मजाक नहीं है। ऊपर से प्लस साइज क्लोथिंग भी आज के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्लस साइज लोगों के लिए, स्पेशली प्लस साइज फीमेल्स के लिए कपड़े मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हल्क, जो कि जेनिफर का कज़न है, बड़े कैजुअली कहता है, स्पैंडिक्स विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। आई एम सरप्राइज्ड कि ये डायलॉग फीमेल राइटर्स और डायरेक्टर्स ने अप्रूव कैसे कर दिया। ऑल्सो बॉडी डिस्मॉर्फिया आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बॉडी डिस्मॉर्फिया का मतलब है एक ऐसी मेंटल कंडीशन जिसमें इंसान अपने फिजिकल फीचर्स से नाखुश रहता है और उसको चेंज करने की कोशिश करता रहता है। बिगेस्ट एग्जाम्पल इन टुडेज टाइम्स आर द कार्दाशियंस। अब मैं ये बात यहाँ क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जेनिफर वॉल्टर्स अपनी एवरेज ह्यूमन बॉडी से इतनी नाखुश है कि शी इज़ ओके बीइंग अ 6 फीट ग्रीन स्किन मैस्कुलिन चाइल्ड। एक सीन में वो बोलती है कि मेरे शी-हल्क वाले बाल ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि शी-हल्क के बाल तो वेस्टर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से सिल्की, वेवी, स्ट्रेट है। तो फिर एक अनकन्वेंशनल लुकिंग कर्ली हेयर एक्ट्रेस को लीड रोल में लेने का क्या फ़ायदा हुआ? चलो अब बात सुपर पावर्स की। हल्क का मेन स्ट्रगल था मूड कंट्रोल। शी-हल्क में वो फ्लॉ ही नहीं है और मुझे इस बात से प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी सालों तक डॉक्टर्स फीमेल बॉडीज़ में हार्मोनल मूड स्विंग्स को झूठ मानते आए हैं। अब जब इनको चांस मिला कि उसको रिप्रेजेंट करे तो इन लोगों ने कहा नहीं भाई, हमारी सुपर हीरो तो पिक्चर परफेक्ट है। एंड डोंट टेल मी इट इज़ बिकॉज शी इज़ अ लॉयर, क्योंकि वो एंगल तो कभी यूटिलाइज ही नहीं होता है। देन शी-हल्क की एथलेटिक एबिलिटीज़ डोंट मेक एनी सेंस। ऐसा तो नहीं है ना कि रियल लाइफ में जेनिफर वॉल्टर्स का कोई एथलेटिक बैकग्राउंड है, वो रनर है, जिम्नास्टिक्स करती है या योगा करती है, कुछ नहीं। रियल लाइफ में जेनिफर वॉल्टर्स काफ़ी क्लमसी है, लेकिन सुपर हीरो बनते ही शी इज़ परफेक्ट। आर यू टेलिंग मी दैट इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ अ जेंडर? मैं नहीं मानती। एंड द बिगेस्ट सुपर पावर इज़ दैट शी कांट गेट ड्रंक, क्योंकि लड़की होके ड्रंक होना मौत को न्योता देने जैसा है, राइट? यू नो व्हाट वुड हैव मेड सेंस? इन्हांस्ड कॉग्निसेंस। मतलब समझाती हूँ। लड़कियाँ बाय डिफ़ॉल्ट अपने सराउंडिंग्स को लेकर काफ़ी अवेयर होती है, क्योंकि दुनिया हमारे लिए काफ़ी खतरनाक है। आप शी-हल्क को हाइपर अवेयर बना देते, हियरिंग पावर तेज़ कर देते, रिफ्लेक्सेस तेज़ कर देते, नाइट विजन दे देते, लेकिन ना बाबा,
ड्रंक नहीं होते हमारे सुपर हीरो। क्लियरली द मेकर्स वे कंफ्यूज्ड कि स्टोरी का मोटिव क्या है और उसे किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। नाउ बैक टू यू आर्टमैन। थैंक्स दीदी। ऑलराइट, पार्ट 2 पे आते। पार्ट 2, द VFX। Yes, the VFX is dog shit. But is it though? Because maybe it's not. It leaves a lot to be desired for sure. लेकिन मेरे लिए it's more about the facial animation. I don't care if the model looks quote unquote realistic. Tatiana Maslany की skin is much smoother than Mark Ruffalo's in real life. So that's fine. The talking animation, the smiling, the overall proportions of the face kind of threw me off. लेकिन I am not hopping on the hate train. VFX is an expensive and time consuming business. इन बेचारे VFX आर्टिस्ट को इतना कम टाइम और इतना ज़्यादा काम है currently. I absolutely empathize with them. This is a Marvel issue, not a She-Hulk issue. And we should admit it. Marvel को ना साल में सिर्फ 2 मूवीज़ और 3 शोज़ कर लेने चाहिए। माना हमें एंटरटेनमेंट के लिए टाइम बहुत लगेगा, रुकना पड़ेगा, लेकिन एक बात आप सबको बताना चाहूँगा, मार्वल के पहले 3 फेजेस ख़त्म होने के लिए 11 साल लगे और अभी के 3 फेजेस यानी फेज 4, 5 and 6 को barely 3.5 years. The extra time will be beneficial. It will keep the intrigue, allow for more time to work on the story, the VFX, the interconnection between all of these stories. The production value will increase exponentially. Let that simmer for a while. And finally, part 3, the wokeness. Honestly, I don't mind representation. सच में, it's a good thing. I've always wanted to see an Indian superhero. क्रिश की तो इतनी पॉपुलैरिटी इसीलिए थी ना हम इंडियंस में, क्योंकि हमें भी एक इंडियन सुपर हीरो चाहिए था. I understand the reasoning behind the representation and I support it 100%. What I do not support at all is sloppily and hastily put together scenes of representation. राइटिंग के पर्सपेक्टिव से देखा गया तो ये ऑनेस्टली कॉलेज के बच्चों ने लिखा हुआ स्क्रिप्ट लग रहा होगा. कोई सीरियसनेस मेंटेन नहीं रख सकते, हर 2 मिनट में जोक्स हो जाते और ऊपर से कोई पॉइंट सटली कन्वे करने ही नहीं आता इन लोगों को. भाई ब्रह्मास्त्र हैड अ मच बेटर स्टोरी देन दिस. नोटिस हाउ आई एम अवॉइडिंग सेइंग वोक. आई हेट दैट वर्ड because it's gotten a really negative connotation recently, and honestly I hated it before that too because of how dumb it sounds. I'm woke. Just say I'm awake or मेरी आंखें खुल गई sounds better. Imbeciles. And there's many scenes that push forth the women empowerment narrative in this show, which I absolutely do not have any issues with. Female-led superhero show है, होगा ही. It's meant to talk about things that females deal with and relate to. मैं समझता हूँ, लेकिन मैं sloppy और aberrant writing बर्दाश्त नहीं कर सकता. Horrendous job at attempting to make things make sense and fail at it. अगर स्टोरी पे थोड़ा और फोकस किया होता ना तो लोगों ने अप्रिशिएट किया होता, बट नहीं कर रहे ना. माना कि देयर सम एलिमेंट ऑफ आई हेट दिस शो बिकॉज इट्स न्यू, बट कम ऑन, it's not a throw as much as possible and see what sticks contest. It's a show that's supposed to be able to communicate important and sensitive topics with grace while still being able to balance the humor. इस न्यू फेज में तो वॉन्ग का भी मजाक बना के रखा है यार. वॉन्ग अपने सॉर्सरर सुप्रीम जी को छोटे उड़ने वाले डीमंस को हराने में शी हल्क की मदद की जरूरत है. भाई ये सॉर्सरर सुप्रीम ही है ना. सेम फॉर डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, हल्क एंड प्रीटी मच एवरीवन फ्रॉम द ओरिजिनल एवेंजर्स. इन दीज न्यू मूवीज एंड टीवी शोज उनका कोई औकात ही नहीं रखा है. हैंडिंग इट ओवर टू कथा साध्वी टू कंटिन्यू रैंटिंग अबाउट देम. कथा साध्वी हियर, और वोकनेस के बारे में रैंट करने के लिए एक बार जल्दी से कार्तिक आर्यन को याद कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है. लाइक आई सेड बिफोर, फीमेल लॉयर सुपर हीरो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम मेकर्स ने सोचा थोड़ा बोरिंग हो रहा है तो क्यों ना डिज्नी चैनल वाला इमोशनल ड्रामा पेल देते हैं. मुझे इस शो से बड़ी सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे रिप्रेजेंटेशन से बेटर था कि ट्राई ही नहीं करते. फर्स्ट, जेनिफर वॉल्टर्स के लॉयर होने का कोई खास यूसेज है नहीं. वो बेकर या पेंटर होती है तो भी चल जाता. सुपर हीरो डिवीजन में लॉयर बन के ना खुश है, लेकिन कभी भी आउट ऑफ द वे जाके कॉमन लोगों की मदद नहीं कर रही. सेकेंडली, शी हल्क को जिस तरह ग्लैमराइज और फेटिशाइज किया गया है वो स्ट्रेट अप क्रीपी है.
ये कैसी दुनिया है जहाँ लोगों ने हल्क को डिमोनाइज किया लेकिन शी हल्क को डिजायरेबल कंसिडर किया। थर्डली, इमोशनल एंगल बहुत अनोइंग है। जेनिफर वॉल्टर्स की प्रॉब्लम से रिलेट कर पाना मुश्किल है। उसकी पहली कंप्लेंट, जॉब नहीं मिल रही है। जॉब मिल गई, अच्छा अब मुझे सच्चा प्यार चाहिए। लेकिन बहन, तुम तो पैशनेट लॉयर हो ना। ऐसा भी नहीं है कि शी हल्क सीरियस विलन से फाइट कर रही है। उसकी नंबर 1 दुश्मन है एक इन्फ्लुएंसर सुपर विलन। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे टाइटैनिया की बैक स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि एटलीस्ट वो तो अपने जॉब को लेकर काफ़ी पैशनेट है। मैक्सिमम सुपर हीरो लीगल केसेस अनइंटरेस्टिंग हैं। हाँ, एक जेन्युइनली अच्छा केस था मिस्टर इमॉर्टल वाला, लेकिन उस टाइम पे तो हमारी सुपर हीरो दोस्त की शादी अटेंड कर रही थी। उस केस को हैंडल किया है शी हल्क की बेस्ट फ्रेंड निकी रामोस ने और मेरी फेवरेट लॉयर ऑन द शो मैलरी बुक ने। मुझे इन फीमेल लॉयर्स की स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि ये इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपेयर टू बाकी सारे सुपर हीरोज की लाइफ, शी हल्क की दुनिया बड़ी वाइट वॉश्ड और नॉन सीरियस लगती है। I mean seriously, what is it with Hulk का जानी दुश्मन turning into a meditation guru? How high were these people while making the show? आपको स्टोरी को वोट बनाना था तो आप शी हल्क को एक लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड दे देते जो डिस्पाइट हर ट्रांसफॉर्मेशन उसको अंडरस्टैंड करता और सपोर्ट करता। खैर, मैं और भी कमियां निकाल सकती हूँ, लेकिन आज के लिए आई थिंक इतनी बेइज्जती काफ़ी है। बैक टू यू आर्टमैन। I'm not gonna lie, मैंने सोचा नहीं था दीदी इतनी बेइज्जती कर देंगी। Anyway, in conclusion, I'd say that this show isn't the greatest piece of media ever created. कोई भी Marvel show नहीं है, not even Loki. Same for the movies. Only a handful are what I would call memorable. Watch the show to be entertained, and if not, move on. Stop whining about it. Sure, there's a lot of problems in the show. Sure, there's a lot lacking. वो point out करो, बस नहीं पसंद नहीं आया ऐसे मत बोलो. And there's better shows out there that deserve your attention, and MCU was never going to replace your need for good storytelling. Never was, never will. Deal with it. And to add insult to injury, मैंने अभी शी हल्क का फिनाले देखा है, एंड सबसे बड़ी बात जो मुझे नोटिस हुई वो ये है कि जस्ट बिकॉज यू मेक सेल्फ अवेयर जोक्स अबाउट योर फिनाले, इसका मतलब आपके स्टोरी के सारे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो जाते. इट इज़ स्टिल जस्ट एज मंडेन एंड बोरिंग एज द रेस्ट ऑफ द शो. ये जो जेनिफर को लग रहा था कि नॉर्मल एंडिंग बना देंगे, कोई एक्साइटिंग चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसकी नॉर्मल सी की डेफिनेशन है ना, वो आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट इट इज़. एंड दे ऑल्सो वेस्टेड स्कार. कम ऑन. ओके, कम डाउन. But that's my secret, guys. I'm always angry. So, if you think that the criticism that me and Katha Sadhvi have put forth is valid, तो definitely like, share और subscribe ज़रूर करना. अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट कर देना. ऐसे ही टाइप का एक रिव्यू मैंने अभी रिसेंटली रिलीज़ हुए ब्रह्मास्त्र के बारे में किया है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, डू गो एंड चेक इट आउट. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द कॉमेंट्स. तो अगली बार मिलेंगे. टिल देन, गुड बाय.